So everybody, those who are watching us, it gives me immense pleasure and honor to be on the screen with this beautiful lady जिन्होंने टीवी स्क्रीन क्या बिग स्क्रीन पे सब जगह धमाल मचाया, अपनी एक्टिंग का जलवा बिखेरा है, कई फैंस बनाए हैं और इनफैक्ट उनमें से एक मैं भी हूँ. इनके साथ एक शो में मिला था मैं हरदा में. We are doing Star Plus पहचान नई सोच की. Since then I have been following her like a religion. Long time. Yes, I saw that post as well on Facebook when you posted. I was tagged and I was so, oh God, he still remembers me. Thanks. That's what I've earned actually. And seriously, ma'am, आप जितनी अच्छी अदाकार है उससे ज्यादा अच्छी आप एक इंसान है. मतलब आपसे मैं मिला था. At least we spent around 7-8 hours on the stage, and generally मैंने देखा नहीं है जितनी बड़ी-बड़ी एक्टर्स होती हैं बैकस्टेज आराम से कूलली काम नहीं बैठते हैं. बहुत काम की ठंड भी थी फिर भी आराम से. साड़ी पहनी हुई थी, ब्राउन कलर का कोट था, चिल्ड आउट. कोई नहीं, टेक योर टाइम, कॉल मी व्हेन यू नीड मी, आई एम सिटिंग बैक स्टेज. This is what this lady is all about. So calm, cool and composed and still having that beautiful smile. Wow, what a memory to cherish. Yeah, man. It was somewhere in 2012 or 13 if I'm not wrong. I think December it was. Yes, December, but 2012 I think 7-8 years back. Yes, long time. Maybe more than that. I just don't remember. I still remember because that time I was traveling majorly by train because flights are not that great connectivity. Indore, Bhopal are the main flights where they get landed. Then you have to travel 300-400 kilometers by road. So that way. So I still remember that was 2012 December and 2013 January when we did these events. Wow, almost 9 years. So how the journey has been so far for you? ये कहाँ आ गए हम यूं ही साथ साथ चलते चलते. बिल्कुल. It's been so many years. इतने सारे प्रोजेक्ट्स बीच में हो गए, कर लिए. आपके साथ बहुत सारी बातें की, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाने की कोशिश की, कुछ वर्कआउट हुआ, कुछ नहीं हो पाया. ठीक है, part of journey चलता है. But we are connected and still working on it. That's more important. चलते रहने. हाँ बिल्कुल, कनेक्शन बना रहना चाहिए. अच्छा, मैं आपसे एक सीक्रेट पूछना चाहूंगा. हाँ. मैं आपसे तब मिला था और आज आपको लाइव इतने करीबी से देख पा रहा हूँ. अधिकतर हमारी फोन पे ही बात हुई है, मुंबई भी कई बार मुलाकात नहीं हो पाती. So आप अभी तक वैसी की वैसी हैं. Honestly, I'm not saying to flatter you, honestly, but you still look the same. कैसे? Same to you. Oh नहीं, मैं मतलब अभी भी वैसा ही दिखता हूँ. आप क्या? As you were 7-8 years back, young, agile. Child तो है अभी. I'm very child beer kind of thing. I said agile, not a child. Oh my goodness. Sorry, my apologies. My apologies. Right, but seriously, आपके लिए तो बहुत मैंडेटरी होता है अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, अपने आप को एकदम फिट एंड फाइन रखना, लुक्स मेंटेन रखना. कैसे करते हो आप? मतलब बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो इस टाइम देख रहे हैं और जानना चाहते हैं कि जया जी कैसे आप रखते हो. मतलब I know you personally on those terms, but that's why I'm asking you. Not much things, like योग करती हूँ बस खाली. Okay. योग से जिम किया हुआ जितना भी है. That's great, that's great. और ये स्माइल, कैरिस्मेटिक स्माइल का राज क्या है? ये स्माइल तो ये राज है. जितने लोग मुझे प्यार करते हैं उन सबका प्यार मेरे फेस पे झलक आता है. Wow, that's so beautiful, so generous. Yeah, love it. Okay, so मैं अब आपसे कुछ और सवाल करूँगा क्योंकि we are talking about ladies, what they have made the mark in the industry, in the profession they are into. In advance, wishing you a very happy Women's Day, and it's from the complete team of Mycology as well. So, आपकी journey कहाँ से शुरू? मतलब what you actually wanted to be, you are the same into the same profession where you wanted to be, या कहीं और से journey शुरू तो lead होते होते आप वहीं पहुँच गए? I always wanted to be into acting, but मेरी journey जो है वो start हुई थी music से. Okay. I could sing when I was small. My father said कि he somehow he could make out कि I can sing. तो बचपन से मैंने म्यूजिक सीखा है, हिंदुस्तानी क्लासिकल, और मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी उसी में की है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, राजस्थान यूनिवर्सिटी से. बट एक्टिंग जो करियर है वो मेरा स्टार्ट हो गया था when I was in my graduation. I was doing graduation from Jaipur. वहीं से The Sword of Tipu Sultan, that was my first TV show. Seriously, don't tell me. Sword of Tipu Sultan, what a blockbuster show it was on DD National every Sunday 9 AM post Mahabharat. We used to sit and अरे आने वाला है आज तो टीपू सुल्तान किसी को तो हाथी के पाँव नीचे कुछ करेगा. My goodness, yeah, my goodness. Wow.
सो वहां से फिर जर्नी आपकी, तो वहां आपने कौन सा रोल प्ले किया था उसमें? एक्चुअली उनको उस टाइम एक एक्टर चाहिए था जो गा सके, हम्म, क्योंकि यहाँ पे कुछ मुशायरा का कुछ ऐसा सीन था जहाँ पे उनको सिंगर एक्टर चाहिए था। ओके। तो मैं थिएटर कर रही थी जयपुर में भी, तो किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे जया, मैं उस समय जया पांडे हुआ करती थी, हम्म, कि कनौडिया कॉलेज में पढ़ती हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट करिए कि वो गाती भी हैं। हम्म, तो उनसे बातचीत हुई, तो मैंने बताया कि कैमरा मैंने कभी फेस नहीं किया है, थिएटर किया है बट कैमरा, हम्म, तो बोले कि आप चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे। वहां हम्म। जो फिर पहली बार में जो हो गया, तो मुझे एक्चुअली लिया था उन्होंने एक एपिसोड के लिए, फिर वो उसको स्ट्रेच करके 13 एपिसोड्स तक कर दिया उन्होंने। दैट वाज माय Wow, फर्स्ट ब्रेक। that's great. What a good break, starting from first, stretching until 13. That's huge. That's huge. तो आपका रोल क्या था, ये जानना चाहेंगे। मतलब सिंगिंग तो आपने करी मेरा रोल डेफिनेटली। था उसमें एक कैरेक्टर थे पूर्णिया पंडित, हम्म। जो टीपू सुल्तान के राइट हैंड हुआ करते थे। हाँ उनकी जी। बहू जो थी वो एक वॉरियर थी, तो हम्म। उनकी बहू का जो है वो मैंने रोल किया था। वॉरियर तो आप हैं डेफिनेटली, अभी बहुत सारी बातें हाँ, खुलेंगी सारी आपको। लेडीज वॉरियर्स ही होती हैं, जो घर में भी That's काम करती हैं, जो घर संभालती हैं वो इतने अच्छे से घर संभालती हैं, वो दूसरे काइंड की वॉरियर्स हैं। जो बाहर काम करती हैं वो दूसरी काइंड की वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स तो हर तरह की लेडी है ही अपने आप में। That's true, very much true, very well said. Okay, तो वहां से आपकी जर्नी शुरू हुई एज एन एक्टर, बट आप सिंगर बनना चाहते क्योंकि म्यूजिक से ताल्लुका था मेरे आपने? फादर जरूर चाहते थे कि मैं सिंगिंग में जाऊं, हम्म। और अगर सिंगर ना बन पाऊं तो एटलीस्ट प्रोफेसर बन जाऊं। क्योंकि वो खुद भी प्रोफेसर रहे थे। ओके। तो ही वाज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश लिटरेचर के ओ कॉलेज गॉड। में। तो ही वांटेड मी टू बिकम एटलीस्ट अ प्रोफेसर, की बड़ी कूल लाइफ होती है उनकी, कोई ज्यादा स्ट्रगल नहीं होती, एंड स्पेशली हम्म। फॉर लेडीज इट इज वेरी गुड टू बिकम अ प्रोफेसर। सुबह आराम यस। से गए, 2-3 घंटे लेक्चर्स लिए और वापस आ गए। हम्म। का मन That's ये great. जरूर था। पर जब इस तरफ कहते हैं ना, भाग्य अपने आप रास्ता अपना निकाल लेता है, तो मेरा कहीं हम्म। मन था, और करना भी चाहती थी, थिएटर भी कर रही थी। और हम्म। मैं बहुत छोटी सी जगह से बिलोंग करती थी, तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं थी वहां पे। पर हम्म। एनएसडी की कुछ वर्कशॉप्स लगी वहां पे 3-3 महीने की, वो मैंने जरूर की। और मेरे फादर ने मुझे कभी नहीं रोका, मेरे फादर ने, मदर ने, मेरे भाइयों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, तो आज यहाँ तक आ पाई। बनता है उनके लिए डेफिनेटली, अगर वो लोग सपोर्ट नहीं करते, वो लोग एग्री नहीं करते, तो आज हमें कितनी अच्छी अदाकारा से बात करने का मौका नहीं मिलता, एंड डेफिनेटली कुड सी एक्टिंग ऑन स्क्रीन। तो सिंगिंग की आपने बात करी, आपके पिताजी प्रोफेसर थे लिटरेचर, लिटरेचर में सोक्रेट्स, शेक्सपियर, ये सब घर में ही चलता यस। था। तो कहीं ना कहीं से एक्टिंग से तो जुड़ाव आपका था, क्योंकि लिटरेचर इज ऑल अबाउट बिग नेम्स, बिग हाँ, बिग स्टोरीज एंड शेक्सपियर, नॉवेल्स एंड ऑल दिस, हाँ, या राइट? तो कभी आपने घर में वैसे परफॉर्म करने की कोशिश करी, ये परफॉर्म मैं करके दिखाती हूँ, ये पापा कैसे परफॉर्म करते हैं, किसी को मिमिक करने की कोशिश करी नहीं, हो? पहले तो नहीं की, अब जरूर करती हूँ। है? ओरे वाह, दैट्स ग्रेट, वुड लव टू सी दैट, किसको किसको मिमिक करती है? नहीं नहीं, ऐसे ही घर घर की बात है। मतलब मैं एक्चुअली घर में सबसे छोटी थी, मेरे 2 बड़े भाई है, हम्म। और बड़ा प्यार करते थे मुझसे, तो बड़े लाड लाड प्यार से पली हूँ मैं घर में। हम्म। तो लाइक आई वॉज अ पैम्पर्ड चाइल्ड हम्म। बट नॉट स्पॉइल्ड। हम्म। तो उस प्यार में कभी कभी दिल करता था अरे पापा की नकल करूं, पर डर के मारे करती नहीं थी। उस हमारा टाइम थोड़ा अलग था ना, जो सबसे हम्म। थोड़ा सा मिलजुल के चला कर। आजकल जैसे बच्चे कैसे रिबेलियस होते हैं, आपने ट्रू। नहीं किया तो इमिडिएटली आपको रोक देंगे, पर हमारे यहाँ से था पापा ने ऐसा कह दिया तो वो करना ही है। तो बिल्कुल बिल्कुल। उस समय कभी दिल भी करता था नकल करने का, तो फिर डर भी लगता था कहीं पापा ने देख लिया तो। हाँ, पहले तो पता ले पापा सुन रहे हैं हॉर्न में, पी पी, पापा आगे बंद करो, टीवी बंद करो, हाँ भागो हाँ, अंदर, वही है, शटर डाउन करो, पापा के भागो। स्कूटर, हाँ बिल्कुल। हालांकि हमारे टाइम को उतना टीवी नहीं होता था, बट शाम के वक्त तो हुआ ही करता था। हमारे यहाँ हम लोग कॉमिक्स ज्यादा पढ़ते थे, तो हम्म। कॉमिक्स का टाइम था, जैसी पापा के कॉमिक्स सारी अंदर, तो वो सब तो ओके, हुआ ही करता था। क्या बात है। कॉमिक्स से आपने याद है, बिल्लू हुआ करते थे, चाचा चौधरी, बिल्लू, चाचा साबू, चौधरी, पिंकी, पिंकी, यस, मोटू पतलू, आर्चीज। हाँ, आर्चीज। माय गुडनेस यार, क्या मतलब, क्या एरा आर्चीज हुआ हमारे करता था। हमारे टाइम पे आर्चीज पढ़ना बड़ा खराब माना जाता था, और मुझे बड़ा शौक था आर्चीज पढ़ने का। तो मैं हम्म। पापा से छुप छुप के किराए से लाया करती थी, ताकि घर में दिख ना जाए। हम्म। 1 या 2 रुपए किराया होता था उसका, 2 दिन के हाँ लिए जी। रखो आप, और पढ़ के उसको वापस कर दो। नहीं, वेरी ट्रू। मैंने भी कॉमिक्स किराए पे पढ़ी हैं, क्योंकि कौन क्लस्टर इकट्ठा करे, संभाले कौन, इतनी महंगी बुक आए, उसके नहीं बाद फिर नहीं, आप मेरे संभाल। मेरे फादर ने बहुत सारी लगाई हुई थी कॉमिक्स हमारे लिए पढ़ने के लिए, क्योंकि वो हमेशा चाहते थे हम्म। हम अच्छा पढ़े। तो हम्म। अमर चित्र कथाएं,
और इस तरह की नंदन। नंदन, पराग, ये सब आया हम्म। करती थी हमारे। चंपक, चंपक के अलावा एक आती थी ग्रह लक्ष्मी, आती थी ग्रह शोभा गृहलक्ष्मी तो आती खैर थी। मम्मी वगैरह के लिए हुआ करती थी, तो मम्मी तो उस तरह की नहीं, पर हमने ये कॉमिक्स जरूर बहुत पढ़ी है, वेताल। अच्छा, तो मैं आपसे एक चीज पूछ चाहूंगा। आज के युग में वी आर सो टेकी, टेकी एज इन सब गैजेट से घिरे हुए हैं, मोबाइल है, लैपटॉप्स हैं, टैबलेट्स हैं, आप जिस मर्जी चीज कहते हर चीज स्क्रीन पे आ गई है। और हमारे एरा में अगर हम बात करें अपने बचपन की, तो उस टाइम बुक्स ज्यादा होती थी। तो व्हाट इज मोर फेवरेबल, व्हाट इज मोर कंडीशनिंग, रीडिंग बुक्स ऑब्वियसली और गोइंग? बुक्स, वैसे देखो टाइम के साथ हर आदमी को चेंज हो जाना चाहिए, बदलाव तो हमेशा से रहा ही है, और बदलाव से हमेशा आदमी आगे ही बढ़ा है। पर पास्ट हमेशा ग्लोरियस होता है ज्यादा, हमें लगता है हमारा बचपन ज्यादा अच्छा था, हम बुक्स पढ़ते थे, कॉमिक्स पढ़ते थे, ज्यादा अच्छी चीजें ग्रैस्प करते थे, उसमें गलत चीजें सीखने का मौका बहुत कम था। आजकल जो इतना ज्यादा गैजेट से बच्चे जुड़े हुए हैं, इतनी ओपननेस है हर चीज में, और बिफोर टाइम उन्हें हर चीज का पता होता है, तो ये अच्छा भी है और कुछ हद तक खराब भी करता है। खराब भी है। ट्रू, वेरी ट्रू। हमें उस टाइम चीजें ऑन टाइम पता लगती थी कि ये ऑन चीज टाइम, अब अभी ऐसी। इन बच्चों को बिफोर टाइम हर चीज पता है, हर चीज हम्म। का एक वक्त होता है, उसी समय पता चले तो वही अच्छा होता है। That's true, very well said, मैम। ओके, कमिंग बैक टू योर जर्नी, क्योंकि जर्नी आपकी मुझे पता है बहुत ही मस्त रही। जयपुर से आपके में से एक सवाल पूछा गया, इनसे पूछो मैम जयपुर में कहाँ से देखी, कि हम भी जयपुर से बिलोंग करते हैं। मैंने जयपुर से अपनी पढ़ाई की है। मैं वैसे मेरे मम्मी जो, पापा तो एक्सपायर हो गए हैं, मम्मी है मेरी श्री गंगानगर में। ओके। तो हाँ, तो श्री गंगानगर से मैंने स्कूलिंग की है, बीएसएफ स्कूल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्कूल था मेरा, और फिर ग्रेजुएशन मैंने की है कनोडिया कॉलेज से, और पीजी मैंने किया यूनिवर्सिटी से, राजस्थान यूनिवर्सिटी। क्या बात है मैम, मतलब ग्रोथ पे ग्रोथ, ग्रोथ पे ग्रोथ, आगे ही बढ़ते गए। वो मतलब तय था, इट वाज अ डेस्टाइन फॉर यू टू हैपन कि यहाँ पहुंचना है आपने। दैट वाज तो एक्चुअली डेस्टाइन्ड टू राइट, कम इनटू तो बीसीबी। सिंगिंग आपने सीखी कभी प्रोफेशनली, या जब सिंगर बनना था? नहीं, प्रोफेशनली तो मैं कभी नहीं गा पाई, बट मेरे जो हस्बैंड हैं वो इसी लाइन में है, म्यूजिक में है, और जी। ही स्टार्टेड एज अ सिंगर, ही sang all the songs for मोहब्बतें, जी। and later for many albums and films। और हम्म। वो मुझसे घर पे जरूर गवाया करते थे, तो घर पे वी हैव अ स्टूडियो आल्सो एट होम, तो घर में कभी कभी ऐसे गा दिया, कभी उनके कुछ ट्रायल सॉन्ग्स होते हैं तो वो गा लेती हूँ, मुझे बट पता है। म्यूजिक छूट गया मेरा। मैं उस पे भी आने वाला हूँ फॉर श्योर, और हमारे जितने भी दर्शक है डेफिनेटली दे विल आल्सो लव टू सी सिंगिंग, क्योंकि आपने सिंगिंग एज अ सिंगर जर्नी शुरू करी। तो मैं कुछ ज्यादा प्रोफेशनली कभी सीखा, लेकिन इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड फॉर, क्योंकि आप एनएसडी की वर्कशॉप्स अटेंड कर चुकी थी और आप थिएटर कर ही रही थी, आपको ब्रेक मिल गया सीधा टीपू सुल्तान से। तो टीपू सुल्तान में कई बार होता है कि उस टाइम, आज की जनरेशन, अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बीइंग अ लेडी एंड अ न्यू कमर टू द इंडस्ट्री, उस टाइम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, क्योंकि उस टाइम पे पेरेंट्स इतने ओपन नहीं थे, लेकिन यू वर सो लकी टू हैव सच ग्रेट पेरेंट्स, राइट? तो आज की डेट में होती है कि अपॉर्चुनिटी के चक्कर में लोग पैसे को मायने नहीं देते हैं, राइट? और उस टाइम भी यही था कि अपॉर्चुनिटी मिले लेकिन पैसा भी चाहिए। तो उस टाइम कैसा सिनेरियो था, मतलब अपॉर्चुनिटी और पैसा दोनों बराबर मिल रहे थे, या उस टाइम ये था कि बस अपॉर्चुनिटी पकड़ लो, आगे निकलना है, स्क्रीन पे दिखेंगे, कहीं पहुंचेंगे, नहीं, कुछ होगा? हमारे मेरे टाइम ऐसा था, मैं गई तो पढ़ने थी, मैं हॉस्टल में पढ़ रही थी, ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर किया ही था, और ये मुझे ये मिला मुझे मौका, संजय खान जी ने जो दिया, तो पैसा तो मैंने सोचा ही नहीं था कि मुझे पैसा भी मिलेगा। मैं जब करने गई और जब मुझे एंड ऑफ द डे कैश हाथ में दिया गया, तो दैट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे कैश में पैसे मिलेंगे, जो घर से 500-600 रुपए उस समय आया करते थे, तो 300 रुपए मेस फीस में जाते थे, हाँ बाकी जी। 200 रुपए अपने पूरे महीने के खर्चे के हुआ करते थे। उसके हम्म। अलावा जब मुझे 1,500 रुपए कैश रोज मिलने लगा, तो आप सोचो, मैंने अपने फ्रेंड्स को बहुत पार्टीज दी है, मेरी सारी फ्रेंड्स एकदम बाग बाग हो जाया करती थी कि अरे वाह, मेरे साथ साथ मेरी फ्रेंड्स ने भी बहुत एंजॉय किया है। राइट, 1,500 रुपए, मतलब वो बोलने में कितना अच्छा लगता होगा ना उस टाइम हाँ, मेरे को। आप ये सोचो कि मुझे 500 रुपए महीना घर से आता था, और हाँ, मुझे 1,500 रुपए रोज के मिलने लगे, जब राइट। जब तो कैश, वो भी कैश। कैश, मतलब उसके लिए तो तिजोरी बनानी पड़ी होगी आपको अपने पीजी में, क्यों कैसे अरे हाँ, उस टाइम तो ऐसा लगता था पता नहीं कहाँ का खजाना हाथ में आ गया, और बस इसको उड़ाओ, खर्चा करो, पेरेंट्स के लिए गिफ्ट्स खरीदे, अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए। सही है, दैट्स रियली ग्रेट, ग्रेट टू नो, क्योंकि उस टाइम पे व्हेन आई स्टार्टेड, मेरा अगर मैं बताऊं एक्सपीरियंस जो रहा है पर्सनली, आई स्टार्टेड वेरी लो, लो बजट थिंग, बिकॉज न्यू कमर्स को इतना नहीं मिलता था, बट आपको तो सीधा 1,500 रुपए मींस मायने रखता था कि
एकदम अब मिला। उसके बाद हमारी टीपू सुल्तान की जो ये अदाकार है, इनकी जर्नी जो है कैसे आगे बढ़ी वो हम जानना चाहेंगे। उसके बाद डीडी हुआ करता था उस समय, तो डीडी के कुछ शोज मुझे मिले, एज मेन लीड भी मिले। और क्योंकि मैं गाना गाती थी तो कुछ एंकरिंग शोज मुझे ऐसे मिले कि जो मैं गाना गा के ओपन करती थी उनको। और फिर आगे जैसे शो थीम टाइप्स, एक दिन की थीम है अगर लव, तो उस लव पे मुझे कोई गाना दिया जाता था, मैं वो गा के उस शो को ओपन करती थी। और ऐसे वो उस दिन का शो, उस दिन की जो एपिसोड है वो आगे बढ़ता था इसी के हिसाब से। और बीच बीच में कहीं कहीं एंकरिंग आके हर गाने के बाद या किसी भी सीन के बाद वो ऐसे में किया करती थी। तो संडे के दिन मेरे 2 शोज आया करते थे, इंद्रधनुष जो कि म्यूजिकल था, yes. और एक नन्ही दुनिया जो बच्चों के लिए हुआ करता था। ओके, दैट्स ग्रेट। क्या बात है, मतलब एंकर भी है, सिंगर भी है, एक्टर भी है, एंड क्या कुछ नहीं है। आप एक बहुत बेहतरीन अदाकारा होने के साथ आप एक माँ भी हैं, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ भी हैं, और आप परिवार को भी संभाल रही हैं। और आज इतनी कमिटमेंट के बाद आप देखिए आप यहाँ इस समय हमसे बात कर रही हैं। वाओ, दैट्स ग्रेट, सो कमेंडेबल, एंड दिस इज व्हाट वी से। सलाम है इस नारी शक्ति को। सीरियसली, वी आर रियली honored to meet and talk to such ladies, those who are so wonderful and committed towards their work. Wow. Sorry we have changed the place. मैम कोई बात नहीं है, हमें इंसान से मतलब है, बाकी तो जगह तो बदलते रहने दो, कोई टेंशन नहीं है। नहीं, एक्चुअली मैंने बताया ना, मैं मेरी भाभी के आई हूँ, और वहां से आई एम ट्राइंग टू कनेक्ट। Thankful to you and to your bhabhi ji as well for letting this happen. Yeah. Right. So, just a minute. Yes. Okay. एक सेकंड, ये गिर जाएगा लेकिन ये स्टार्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे। 1 सेकंड। Right. 1 सेकंड ना। Yes, वो लाइट थोड़ी कम होगी। यहाँ तो नहीं हो पाएगा। लाइट कर दो प्लीज। ठीक, तो उसको रखने की just 2 minutes. No worries, ma'am. No worries. Take your time. कल मुझे एक चेयर दे दो खाली। Sorry. Right. अब आपकी चेयर आ रही है पीछे से। हाँ, पीछे से मेरी चेयर है। Very good evening, sir. कैसे हैं आप? Hey, how are you? Very good. Glad to see you. What a surprise. Thank you so much. Carry on, please. Sorry for this. It's okay, sir. Perfectly okay. मैं बल्कि आपको बुलाऊंगा, चाहूंगा अभी हम वो करेंगे जो स्टूडियो में आप लोग साथ में ट्रायल्स देते हैं, हम एक ट्रायल यहाँ पे भी देखें। Definitely will do it too. Right. So हम आपकी जर्नी के बाद, टीपू सुल्तान के बाद आपने जब वो करा तब तो हुआ कि यार टीपू सुल्तान तो हो गया, What next? अब क्या करूँ मैं आगे? वो क्या कहाँ जाऊँगी? जैसे मैंने कहा ना, डेस्टिनी अपनी तरह मुझे घुमाती रही। जैसे एक रोड जा रही है, अपने आप घूमती, आप उसके साथ घूमते चले जाते हो। ऐसे ही हुआ, टीपू सुल्तान किया, उसके बाद अपने आप मुझे डीडी के कुछ शोज मिले। एक और मेरा शो आया करता था, दिल की दिल में रह गई, उसमें आई यूज्ड टू बी द लीड। दैट वाज अ कॉमेडी शो। और ये कुछ एंकरिंग शोज अपने आप मिलते चले गए। उस समय ऑडिशंस नहीं हुआ करते थे कि आपको जाना है ऑडिशंस देने। तो ये करते करते 5-6 साल हो गए, 7 साल हो गए। और इस बीच में सोनी लॉन्च हो रहा था। ओके। तो सोनी में उस टाइम मुझे एक शो की ऑफर दी थी उन्होंने, जिसके लिए मुझे पैसे एडवांस दिए गए थे। और 20,000 रुपए मुझे एडवांस मिले थे उस समय। पर उसी समय ऐसा हो गया कि शादी हो गई, तो फिर 10 साल का मैंने गैप लिया। ओके। उसके बाद 10 साल का गैप। सो क्योंकि बच्चे हो गए थे, 2 बच्चे हो गए थे, तो गैप लेना पड़ा मुझे। This is really commendable about ladies. This is why we are celebrating a week-long Women's Day की करियर को मायने ना रखते हुए या प्रधान ना रखते हुए आपने अपने परिवार को, अपनी शादी को और अपने बच्चों को ज्यादा अहमियत दी, और जिनको पाल पोस के आपने इतना बड़ा किया। देखो, लेडीज जहाँ डेस्टिनी की बात करते हैं ना, तो लेडीज, नारी जो है वो ऐसे ही डिजाइन्ड है। अगर आदमी बच्चा पैदा कर सकता तो जरूर आदमी को ये मौका दिया गया होता। नारी का जीवन जो है, नारी का शरीर जो है ऐसे डिजाइन्ड है कि अगर काम करते करते, मतलब ये भी प्रिविलेज हमें ही दिया गया है कि हमें से एक नया न्यूबॉर्न आता है, वो एक जीवन का बहुत जरूरी पार्ट है।
और जब न्यूबॉर्न आया है तो उसको थोड़ा बड़ा कर देना, समझदार कर देना, वो भी एक जीवन का बहुत ही जरूरी पार्ट है। मतलब उसमें हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का उतना ही योगदान होता है। खाली मैं ये नहीं कहूंगी खाली माँ का उतना ही योगदान है, फादर का भी उतना ही होता है। तो ये जीवन ऐसे ही चलता है। आप बाल अवस्था से आप किशोर में आते हो, किशोर से युवा में आते हो, युवा से गृहस्थ आश्रम में जाते हो, तो गृहस्थ आश्रम के अपने कुछ रूल्स होते हैं। तो उसमें उसका ये रूल है, आपने जब बच्चे पैदा किए हैं तो आप उनको लुक आफ्टर करना, उनको सही दिशा में लाना भी आप ही का काम है। वेरी ट्रू, वेल तो सेड। उसको वही फॉलो करना ही पड़ेगा। उसी नारी शक्ति को नमन है माइकोलॉजी का, हमारी तरफ से, मेरी तरफ से नमन है उसी शक्ति को जो आप लोगों को ही भगवान ने प्रदान की है, और इसलिए हम ये वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। आपने बात की टीपू सुल्तान में आपने काम किया, कॉलेज में थे, कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताइए कि कभी मस्ती मजाक करी हो, कभी किसी अरे को चलाया कॉलेज, चल। दैट वाज माय गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ माय लाइफ। कॉलेज में तो इतनी मस्ती की है, और हम आज भी मिलते हैं, हमारी जितनी फ्रेंड्स हैं, क्योंकि मैं हॉस्टल में पढ़ती थी। जो धमाले उस टाइम किए हैं हॉस्टल का, जो उस टाइम एक गैंग बन गया था हमारा, देख रही होंगी शायद। तो मतलब वो तो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे हस्बैंड को मैं आज मैं जब फोटोज दिखाती हूँ अपनी, या वो देखते हैं हमारी जो बॉन्डिंग है आपस में, आज भी जो हमारा 18 16 17 18 लोगों का गैंग था, बॉन्डिंग जो आज भी है, उनको बड़ी जलन होती है देखने। बोले अरे यार तुम लोग इतनी मस्ती मारते थे, ऐसी फोटोज है हमारे पास, इतना सारा। उस समय ये नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, बट फोटोज बहुत है उस टाइम तो डेफिनेटली मस्ती की, मेट्रन की, वार्डन, और छुप छुप के उनसे कुछ मस्तियां करना, रूल्स तोड़ना। ओके। और आप इतनी फ्रेंडशिप थी हमारी। जब मैंने पहली बार शूट किया था टीपू सुल्तान, तो उन दिनों मेरी छुट्टियां चल रही थी कॉलेज की, तो मैंने ऑफर आया, मैंने कर लिया। तो मेरी वार्डन और जो प्रिंसिपल थे, उन्होंने मुझे बोला गया कि आपने विदाउट कॉलेज परमिशन के शूटिंग स्टार्ट कर दी है। अब हम यहाँ से आपको शूटिंग करने नहीं जाने देंगे, दिस इज गोइंग टू बी अगेंस्ट हॉस्टल रूल्स। तो मेरी सारी फ्रेंड्स ने भूख हड़ताल कर दी थी उस समय। कॉलेज मेरी हॉस्टलर जो फ्रेंड्स थी, सबने मिलकर भूख हड़ताल कर दी कि मुझे वापस हॉस्टल में लिया जाए। मुझे हॉस्टल से एक्सपेल कर दिया था इस पॉइंट पे कि आपने बिना पूछे ये कर दिया। तो वो बॉन्डिंग हमारी जो है ना, आज भी जो पुरानी बातें याद करते हैं। और मेरा म्यूजिक का रियाज करना, और मेरे जो रूममेट्स थी उनका तकिए से सिर दबा लेना, मतलब कि क्या सुबह सुबह 4 बजे रियाज हो रहा है। वो कुछ चीजें तो इतनी अच्छी हैं, मतलब आप जिंदगी भर भूल ही नहीं सकते उनको। डेफिनेटली। देखिए आज भी बैठ के बात कर रहे हैं और याद करके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है, इससे अच्छी चीज क्या है कि वो क्या मतलब दिन थे सीरियसली। और आज भी जहां भी आपके दोस्त हैं, मैं दुआ करूंगा सब सही सलामत रहे और आप लोग को प्यार ऐसी बरकरार रहे। तो उस टाइम पे थोड़ा सा निजी सवाल है, आपकी शादी जो थी आपकी पसंद से हुई थी? पसंद यानी आपने लव मैरिज करी या अरेंज मैरिज घर वालों ने ढूंढा था? नहीं, हमने लव मैरिज करी जो कि प्रॉपर्ली अरेंज हो गई। अच्छा, लव एज एन अरेंज करी, जो कि हमने खुद ही अरेंज कर ली थी, ऐसे ऐसे हो गए ओवर सारी शूटिंग सेट कर दी। रजामंदी से हुई थी, बकायदा पेरेंट्स की रजामंदी से हुई है। दैट्स ग्रेट, दैट्स सो ब्यूटीफुल कि पेरेंट्स की रजामंदी से हुई है। तो अब आगे आपकी जर्नी, आपको सोनी से ब्रेक मिला, आपको पैसे एडवांस मिले, लेकिन आपकी उस टाइम शादी हो गई, आपने ब्रेक दे दिया 10 साल का। तो जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये है कि आपने 20,000 रुपए का किया क्या? उन्हें वापस कर दिया उनको। सीरियसली यार, हाँ। कुछ तो रखना बनता था कि सर ब्याज ही दे दो 10%। वो तो मेरी अपनी ईमानदारी थी कि मुझे जो काम करना ही नहीं था तो मैंने वापस कर दिए। दैट्स वो ग्रेट। चेक मुझे जो मिला था। That's a sign of a true professional and an honest person. Seriously, that's great. Okay, तो 10 साल बीत गए। 10 साल बाद ऐसी क्या आपको एक हिच हुई, या क्या हिच नहीं, हिच इज अ रॉन्ग वर्ड, बट क्या चीज आपको पुश करी या हिट करी कि जया नाउ यू नीड टू मूव आउट, जो तुम्हारी जगह है, जो टीवी स्क्रीन है या बिग स्क्रीन है, वहां तुम्हें जाना है, ये शूटिंग जोन जो है, वो कैसे स्टार्ट हुई? देखो मेरा जो मेरी लाइफ का फर्स्ट हाफ बिफोर आई गॉट मैरिड, तो सारा मैंने जो जहां तक पहुंची उसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे भाइयों का, फैमिली का हाथ था। शादी के बाद जो मैंने जर्नी शुरू की उसमें मेरा सबसे पहला बड़ा हाथ था मेरे मदर लॉ का। उन्होंने मुझे बहुत पुश किया। ओके। तुम करती थी और तुम्हें वापस करना चाहिए काम। शी हरसेल्फ इज अ डॉक्टर। और फिर ऑब्वियसली मेरे फादर लॉ, बच्चे उस समय मेरे छोटे ही थे, तो वो बोले कि नहीं तुम स्टार्ट करो, पीछे से हम पूरा सपोर्ट करेंगे। वो रतलाम में रहते हैं वो लोग। पर मेरे को जब जब कोई अपॉर्चुनिटी आई तो एक 1.5 2 महीने मेरे फादर लॉ आके मेरे पास रहते थे, बच्चों के पास रहते थे, ताकि उनको कोई ऐसी कमी महसूस ना हो। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है, मेरे हस्बैंड का, कि हमेशा हर जगह मेरे लिए हेल्पफुल रहे वो लोग। और मेरे पीछे बहुत बड़ा सपोर्ट है तीनों का, मेरे हस्बैंड का, मदर लॉ का, फादर लॉ का। अगर इनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं आज जहां तक आई हूँ नहीं आ पाती।
वो जर्नी वहीं रुक जाती। That's great, yeah. Means you're really blessed to have family members like this to support you to grow in your career. Yes, ये सब I'm लिखा very हुआ था। blessed in this way कि मेरी जो अपनी पेरेंटल फैमिली है वो भी इतनी अच्छी है, और जो मेरी इन-लॉज हैं, मतलब मुझे कभी-कभी उनको इन-लॉज बोलने में भी शर्म आती है कि वो इतने अच्छे हैं और इतना सपोर्टिव है। जैसा मेरे पेरेंट्स ने मुझे आगे बढ़ाया उतना ही सपोर्ट करके, बल्कि इनफैक्ट उससे ज्यादा सपोर्ट करके मुझे आगे बढ़ाया। Wow, that's great. Salute नहीं to them. तो मैं नहीं आती। Salute to them. चलिए, तो फिर आपका जब आपकी रीस्टार्ट हुई जर्नी सेकंड हाफ पोस्ट द मैरिज, तो सबसे पहला ब्रेक क्या मिला? एक तो उस टाइम तक मैं थोड़ा सा जिज्ञासु इन मामलों में, क्योंकि 10 साल में चीजें बहुत बदल गई थी, बहुत ड्रास्टिकली आ गए थे। हाँ बिल्कुल। जब आपने टीपू सुल्तान शूट किया था तब टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट, थॉट प्रोसेस सब कुछ और था, अब इस टाइम कुछ और था। तो पहले तो वो नई चीजों से फेमिलियर होना, उनको फेस करना फर्स्ट टाइम, और डेफिनेटली ऑडिशंस देने पड़ेंगे क्योंकि उस टाइम ऑडिशंस का ये है, जब मैंने रीस्टार्ट किया था तो मेरे पास कोई लिंक नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, किससे मिलूं, किसको ऑडिशन दूं। तो समहाउ क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी लाइन में थे पर टीवी इंडस्ट्री में नहीं थे, तो उनके किसी फ्रेंड ने बताया, ही वाज एडिटर, कि हमारा ऐसा मैं एक शो कर रहा हूँ, उसमें मैं कास्टिंग वाले का नंबर देता हूँ, आप उनसे बात करो। तो यहाँ भी मैंने जब स्टार्ट किया तो थिएटर से स्टार्ट किया वापस। यात्री ग्रुप है यहाँ पे, मेरे गुरु है ओम कटारे जी, उनका ग्रुप है। तो मैं पिछले 16-17 साल से उनके साथ भी जुड़ी हुई हूँ, प्लेस भी करती हूँ, हिंदी थिएटर करती हूँ आज भी। तो उन्होंने फिर मुझे वो जो नंबर दिया, उन्होंने मुझे बुलाया कि अब उस टाइम मैं कुमकुम के लिए कास्ट कर रही थी, स्टार प्लस पे आता था जी। तो मैं गई उनसे मिलने, तो वो बोले कि ऑडिशन करना पड़ेगा। मैंने कभी ऑडिशन दिया ही नहीं था, ऑडिशन का मतलब क्या मुझे ये भी नहीं पता था, बिल्कुल कैसे करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेकअप भी नहीं किया था, बोले आप मेकअप करके नहीं आए हो। तो मैंने कहा मुझे पता नहीं था कि मेकअप करके आना होगा, और ऐसे लिपस्टिक और लाइनर लगाया हुआ था। बोले चलो एक काम करो, ऐसे ही दे दो आप। और उन्होंने कुछ 4-5 लाइन दे दी मुझे कि आप ही परफॉर्म करके दिखाओ कैमरा के सामने। और बस वो मुझे बड़ा अनबिलीवेबल लग रहा था कि ऐसे कैसे होगा, कभी किया ही नहीं था ऐसा ऑडिशन। पर किया जब ऑडिशन, और उसी में सिलेक्शन हो गया। तो कुमकुम से स्टार्ट किया, फिर साईं बाबा मिल गया मुझे, सागर्स का साईं बाबा मिला, तो उन्हीं ने फिर मुझे उनका एक और शो आता था लकी, उसमें डाल दिया। वो मिला तो उनका रामायण मिल गया। ऐसे फिर जर्नी वापस चल पड़ी। वाओ, दैट्स ग्रेट। देखिए, हर आर्टिस्ट के लिए उसका हर एक किरदार बहुत फेवरेट होता है, एक बच्चे की तरह होता है, लेकिन किरदार को निभाने के लिए प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। तो ऐसा कौन सा किरदार है जिसने आपसे मेहनत बहुत कराई है? अभी जो रिसेंटली, हालांकि मैं अभी जो मेरा एक करंट शो था, तेरा यार हूं मैं। हाँ जी। मैं बेसिकली मैंने जो प्ले किया वो 65 इयर्स ओल्ड लेडी प्ले किया है जी, और दैट टू मारवाड़ी लेडी। तो इसको करने के लिए मैं पहले मना कर रही थी कि मैं नहीं करूंगी इतनी एल्डरली रोल, और हमेशा मुझे फिर दादी के रोल्स मेरे हाथ में आएंगे। और फिर मुझे घर में समझाया गया कि नहीं, मेरे जो क्रिएटिव्स थे उन्होंने समझाया, मेरे हस्बैंड ने समझाया कि टेक इट एज अ चैलेंज। यस, है ना, कि उस एज में आके वो लेडीज कैसी हो जाती है, वो भी मारवाड़ी लेडीज कैसी रहेगी। तो मैंने अपने फ्रेंड्स को, जयपुर में जब मैं रही थी, कुछ मारवाड़ी फ्रेंड्स से उनको फोन्स किए, उन्होंने मुझे रेफरेंसेस दिए कि हमारी दादी कैसी हुआ करती थी, वो कैसे बोलती थी। और जब सेट से पहले स्क्रिप्ट आती तो मैं स्क्रिप्ट में पहले लिखती थी सारा मारवाड़ी में। अच्छा। कि मैं हाँ, कि मैं कहाँ पे क्या ऐड करूंगी। फिर फ्रेंड्स को फोन करती थी कि अगर मेरा ये लाइन है और मैं हिंदी में ये ऐड करना चाहती हूँ तो मारवाड़ी में इसको कैसे कहेंगे। राइट। तो क्योंकि मेरे भाई भी वहीं पले बड़े राजस्थान में, तो उनके भी आगे फर्दर जो फ्रेंड्स थे उनसे मैं पूछती थी कि अगर मुझे मजाक में किसी को कुछ कहना है, अभी कुछ भी, वो मैं हिंदी में अगर ऐसा है तो मैं इसको मारवाड़ी में क्या, कोई ऐसी कोई सेइंग है क्या है, वो ऐड कर करके फिर मैंने जो अपना कैरेक्टर बनाया। तो बाद में सबने, मतलब जो मेरे क्रिएटिव्स हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, मेरे प्रोड्यूसर्स हैं, सबने यही बोला कि और कोई दादी तो हम सोच ही नहीं सकते थे आपके अलावा। What a compliment यार, what a compliment। और इतना हार्ड वर्क करा आपने, मतलब क्रिएटिव्स को भी पीछे छोड़ दिया कि जेन्युइनली टू द रूट यू वेंट, कि जेन्युइन लोगों से आपने वो लिखवाया और वो पूरा फील आया। उसका एप्रिसिएशन भी आपको बहुत मिला है, ऑन स्क्रीन पे भी बहुत लोगों ने, ऑन स्क्रीन मेरे फैंस और उन सब ने बहुत अप्रिशिएट किया है। और इनफैक्ट मैं मजाक की बात कहूँ तो मेरा एक फ्रेंड हुआ करता था जो कि मारवाड़ी था, मुझे कहता है यार तू मारवाड़ी होगी इतनी अच्छी लगेगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, काश मैंने पहले सोच लिया होता। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, वो कैरेक्टर करने में मुझे शुरू में दिक्कत आई क्योंकि वो जबान में बिठाने के लिए, क्योंकि उससे जस्ट पहले मैंने जो शो किया था वो हरियाणवी में था, बड़ो बहू।
हाँ जी, उसमें बड़ों को। हरियाणवी माँ थी, वो जिसमें प्रिंस की मदर मैंने किया था। जी तो हरियाणवी करते करते 2-2.5 साल वो शो चला। तो हरियाणवी को फिर हटा के राजस्थानी में लाना वाज अ टास्क फॉर मी। जी। तो पर मैंने की, रोज घर में बोल बोल के आपस में बात कर करके, हम्म। तो पर वो अच्छा हो गया। नहीं, अच्छा, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट मैं ज्यादा तो नहीं देख पाता टीवी, क्योंकि ट्रैवल रहता है, काम रहता है, बट जितना भी देखा मैंने, ग्लिम्स देखा, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने निभाया। सो लर्निंग मीन्स जो आपने पहले लर्न किया, उसको लर्न करने के लिए आपने एफर्ट मारी, फिर उसको डी लर्न करने के लिए कि उसके ऊपर मैं कोई नई चीज की रंगत चढ़ा सकूं, लिहाजे का, बोलने का तरीका, उसके लिए मेहनत करना, फिर उसको डी लर्न करना, और फिर नई चीज करना, और जो असलियत में सीखा वो तो है ही। अच्छा, मेरे साथ क्या हो गया, पिछले कुछ टाइम से ऐसा चल रहा है, हम्म। जब मैंने बड़ो बहू किया तो हरियाणवी किया, उससे पहले जो किया मैं संतोषी माँ करी थी, उसमें मैं भोजपुरी थी। उससे बाहर आना, तो एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं सुबह मैंने वो संतोषी माँ शूट किया, शाम को मुझे यहाँ बड़ो बहू शूट करना था। जी। तो लैंग्वेज मतलब स्विच करना, वहां से भोजपुरी से यहाँ हरियाणवी बनना, हरियाणवी बन के वहां भोजपुरी बन जाना, वॉज अ रियली बिग टास्क। और उसके बाद फिर ये किया अपना मारवाड़ी में तेरा यार हूं मैं। तो मतलब मुश्किल रहा, पर सफर में बहुत मजा आया, क्योंकि मैं डिफरेंट अब करने को मिला। मैं अब इस पे ना थोड़ा सा आपके साथ मस्ती करना चाहूंगा, इफ यू अलाउ मी। अगर संतोषी माँ के डायलॉग, जो भोजपुरी डायलॉग, आपको हरियाणवी में बोलने पड़ते। अब तो हरियाणवी और वापस बोलने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मारवाड़ी बहुत अच्छे से बोल लूंगी, जी। क्योंकि अभी मारवाड़ी। अच्छा, और मजे की बात, जिस दिन मैंने 29 जनवरी को लास्ट शूट किया है मारवाड़ी, और 30 जनवरी को मैंने गर्मी शूट करने गई थी, तिग्मांशु धुलिया की अपनी वेब सीरीज आ रही है गर्मी करके, हाँ जी। उसमें मैं फिर भोजपुरी थी। अच्छा। तो अब थोड़ी सी स्विच करना होता है मुश्किल, पर बट कुछ कुछ ग्लिम्स अगर मिल जाए, आई एम सॉरी कि मैं आपसे बड़ी ऑकवर्ड डिमांड करूं कि भोजपुरी डायलॉग अगर आपको हरियाणवी में बोलना पड़ जाए तो बहुत यूनिक यूनिक कॉन्सेप्ट होगा ये अपने आप में। उनका क्या है, उनकी स्टाइल अलग है, जो भोजपुरी हरियाणवी में नहीं बोल पाएंगे। वो हरियाणवी इतनी कट्टर होती है। जी, खड़ी और भाषा है बहुत। हाँ खड़ी भाषा है, स्टिफ हाँ, भाषा है। खड़ी भाषा है, हाँ। और जो भोजपुरी है या लखनऊ की भाषा बोले तो बड़ी सॉफ्ट है। उसमें पत्थर ही मारेंगे तो बड़े बड़े प्यार से मारा जाएगा। पहले आप नहीं, पहले आप, फिर हाँ, तुम्हारी ऐसी, लो पहले हाँ, तुम। ऑलराइट, सो ये बहुत यूनिक होगा। अभी जो आपने शो किया है, जिसकी आप बात कर रही थी, तेरा यार हूं मैं, इसके किरदार के लिए जब आपने मारवाड़ी सीखी तो आपको क्रिटिसिज्म भी मिला होगा डेफिनेटली, कि घर वालों से तो डेफिनेटली सपोर्ट था, लेकिन घर की जिम्मेदारी में जो आपने नहीं छोड़ी, जो कि एक महिला होने के नाते आपने पूरी निभाई। उसके अलावा जब आप शूट के लिए जाती थी, स्क्रीन पे होती थी, मींस व्हेन दे यूज्ड टू शूट यू, व्हेन यू वर ऑन कैमरा, सेट पे होती थी, तो क्रिटिसिज्म भी मिलता है। तो उसको कैसे मैनेज करना, क्योंकि कई बार की पर्सनल लाइफ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कई बार घर में हो जाती है, नोकझोंक हो जाती है रास्ते में किसी जो भी, और आप जब सेट पे जाती तब भी, तो उस टाइम जया एज अ लेडी क्या सोचती, कैसे अपने आप को मैनेज करती है? नहीं, वो मुझे मैनेज बहुत अच्छे से करना आता है। जो घर है वो घर में छूट जाता है, जो बाहर है वो बाहर ही छूट जाता है। ना मैं बाहर का काम कभी घर लेके आई हूँ, ना बाहर की टेंशन घर में आई है, ना घर की टेंशन बाहर में। वो समहाउ मुझे मेरा आप योग की वजह से कहिए कि दिमाग इतना शांत और कूल रहता है उस टाइम पे, कि मैं बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करती। अगर मुझे कोई परेशानी है तो आप मेरे फेस पे नहीं देख पाओगे। ओके, ये और मैम अगर मैं एक्टर का काम ही यही है। घर की परेशानी, हाँ हाँ, एक्टर का। मैं कभी घर में दुखी हो रही हूँ, हमारा कभी झगड़ा हो जाए, मैं रो पड़ूं, तो ये मानते ही नहीं, बोले मुझे लगता है तुम एक्टिंग कर रही हो रोने की। ये भी नुकसान हो जाता है। मैं वाकई में रो रही होंगी तो मानेंगे नहीं, बोले तुम एक्टिंग कर रही होगी रोने की। ओ गॉड। तो मैम इससे तो मैं ये कहूंगा कि आपके जो पतिदेव हैं, जो वो ज्यादा बड़े अच्छे स्क्रिप्ट राइटर हैं, कैसे घुमाना मैं घुमा देता हूँ। ओ गॉड, ये पहलू भी होता है, ये कभी सोचा नहीं था कि एक्टर्स को। अच्छा, और क्या क्या होता है, कई बार आप जेन्युइनली कुछ बात कर रही होती हैं, और या कई बार होता है कि आप एक्टिंग करती हैं लेकिन जेन्युइन लग रहा था, कोई ऐसा इंसिडेंस खट्टा मीठा मेमोरी नहीं, आप? एक दफा मैंने एक वूट के लिए किया था, बीच में एक वूट की डिफरेंट स्टोरीज आई थी, तो उसमें एक एक घंटे की उसके लिए किया था मैंने, 2 स्टोरीज ऐसे मेन लीड किया था। तो एक में मेरा जो कैरेक्टर था वो दाई माँ का था। उस दाई माँ के कैरेक्टर में वो डुअल फेस्ड होती है, कि घर में बड़ी प्यार से बच्चे को रखा हुआ है, फिर उसको भिखारियों में लेके जाती है, और जब भिखारियों के बीच में जाती है तो वो पूरी गाली गलौज करती है एकदम,
घर में है तो वो मतलब लोरी भी गाएगी बच्चे के साथ, सब कुछ करेगी बड़े प्यार से। और जब उस बच्चे को भिखारियों के पास ले जाती है तो भिखारियों से जैसे बात करना है। अब उसमें जब गालियां लिख के आई तो मैं घबरा गई। मैंने कहा गाली तो मैं बोल ही नहीं सकती, मैंने तो कभी घर में बच्चों को स्टूपिड भी नहीं बोला होगा, और वहां जाके हिंदी में गालियां बोलना। तो मैंने कहा, मैंने डायरेक्टर को मना कर दिया, मैंने कहा ये मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वो बोले कि नहीं नहीं करना है तो कराएंगे, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। फेस उनको ऐसा चाहिए कि जो पॉजिटिव लगे, और एकदम टर्न होके जब आए तो एकदम खतरनाक हो जाए। तो फिर मैंने, अच्छा मेरे हस्बैंड क्या है, मेरे मतलब बड़े सपोर्टिव होते हैं इस मामले में। पहला फोन उनको करती हूँ, मैंने कहा यार मैं यहाँ फंस गई हूँ, क्या करूँ। तो बोले बोलो गालियां। मैंने कहा मैं तो बोल ही नहीं पाऊंगी। बोले तुम एक्टर हो, तुम्हें बोलनी आनी चाहिए ऐसे गालियां। तो अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा अच्छा प्रैक्टिस करती हूँ। मैंने फोन पे गालियां रिकॉर्ड कर करके और अपने हस्बैंड को पोस्ट करती गई उसके सामने। कहाँ पे सही आ रहा है डायलॉग में, एकदम नेचुरल आना चाहिए ना, फिर अगर बोलना भी है तो। कहाँ तो मुझे एकदम घर में वो सॉफ्ट एक दाई माँ टाइप जो बच्चे को संभाल रही है और गाने गा रही है, गोरियां गा रही हूँ। कहाँ जब भिखारियों में जाती हूँ तो बॉटल से मार रही हूँ, और मतलब साड़ी यहाँ से बांध के उछल के यहाँ जा रही हूँ, उछल के वहां, ऐसे ऐसे रोल था। और उसको मतलब कुत्ते कमीने सब तरह की गालियां मुझे उसको बोलना है। तो बड़ी हिच हो रही थी मुझे। फिर जब 2-4 बार 10 बार रिहर्सल कर ली आईने के सामने, फिर हस्बैंड को, मैं अपने हस्बैंड को रिकॉर्ड कर करके भेजती रही गालियां। तो बोले अब मैं डर गया हूँ, अब मैं डर गया हूँ कि मेरा घर पे क्या हाल होने वाला है। यू गो अहेड विथ योर रोल। तो मुझे विश्वास हुआ कि बिकॉज ही इज द बिगेस्ट क्रिटिक मेरे लिए, मैं कहाँ गलत हूँ कहाँ सही हूँ, उनकी सलाह के बिना मैं कुछ नहीं करती। वो कहते थे हाँ ये सही था, तो मतलब सही था मेरे लिए, और गलत है तो वो उसी टाइम मुझे अंडरलाइन कर देते हैं। तो मैंने सुनाई गालियां सारी, तो बोले हाँ अब मुझे डर लग गया कि मेरा घर में क्या हाल होने वाला है, अब तुम कर सकती हो, कर लो इसको। मैं वही सोच रहा हूँ माहौल क्या रहा होगा जब आपने पहली बार कहा होगा, जो भी गालियां लिख के आई होंगी आप उन्हें बोल रही होंगी एक्टिंग के नजरिए से, अगर कोई तीसरा बंदा सुन ले यार। नहीं, और मैंने किया भी, एक्चुअल लोकेशन पे जाके शूट किया है, जो अपने ब्रिजेस के नीचे जहाँ भिखारी रहते हैं ना, एक्चुअल भिखारियों में जाके मैंने शूट किया। नहीं वो शूट करना तो ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ योर वर्क, क्योंकि आपको एक तरह की वर्कशॉप कह लीजिए या इट्स पार्ट ऑफ योर वर्क कि आपको करना है, वो शूट वहां करना है। जब अपने हस्बैंड से आप ये सब शेयर कर रही थी, जब उन्हें बोल रही थी, गलती से अगर किसी ने सुन लिया होता या किसी को पता लग गया कि नहीं, मैं फोन पे रिकॉर्ड कर करके इनको भेज रही थी। मैं सुनो मैं ये बोल रही हूँ, मुझे ये ऐसे बोलना है। और कुछ पोर्शन डबिंग के लिए भी जब आया था हमारे घर पे, तो मैं क्या करती हूँ घर से डबिंग कर लेती हूँ जी। स्टूडियो है हमारे, तो कहीं जाने की, तो डबिंग के लिए आया तो मैंने कहा मैं घर से कर देती हूँ। तो जब उन्होंने सीन भी देखा जहाँ मैंने पहली बार जब मेरा ओपन हुआ कि मैं गाली देके उससे बात कर रही हूँ, तो ये इन्होंने और बढ़ा के मुझे वहां दिलवा दी गाली डबिंग के टाइम। इसको और 2 डिग्री बढ़ा दो। और तो अच्छा निकल के आया था बाद में। मुझे वो पिक्चर आई थी जब वी मेट, उसमें शाहिद कपूर करीना कपूर को सिखाते हैं गालियां कैसी दी जाती है। तो मैं एग्जैक्टली वही इमेजिन कर रहा हूँ आपको कि आप वो हैं और हम लोग फोन पे थे, मतलब हम लोग आमने सामने नहीं थे, हम लोग फोन पे थे कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है, क्या करना है। कैन आई आस्क फॉर अ सैंपल प्लीज? नो नो नो। Just joking, I know आप ये नहीं करेंगी, मुझे पता है, वो एक रोल आपने अदा करना था। हाँ, एक रोल था, पर अब मुझे विश्वास हो गया कि अब ऐसा रोल कभी आएगा दोबारा जी, तो मैं उसको और अच्छे से कर सकती हूँ जी। देखिए मैं आपसे ना एक्चुअली में ये सवाल पूछने वाला था, ये इट वाज देयर इन माय पाइपलाइन टू आस्क यू। कई बार होता है कि आप रियल जिंदगी में जो नहीं होते हैं, चाहे आप अपनी हैबिट्स को लेके ले लीजिए, चाहे अपनी भाषा को लेके ले लीजिए। भाषा पे तो आपने डेफिनेटली महारत हासिल कर लीजिए, 3 लैंग्वेजेस में आपने जो बताया, मारवाड़ी, देन यू हैड हरियाणवी एंड द फोर्थ वन भोजपुरी, थर्ड वन सॉरी। तो अब जैसे किसी को आदत नहीं है सिगरेट पीने की, लेकिन ऑन स्क्रीन सिगरेट पीनी है, किसी को अगर अल्कोहल ड्रिंक नहीं करना, वो आप फेक कर सकते हैं, उसके बहुत सारे एलिमेंट्स आ गए। बट व्हाट इफ यू हैव टू डू इट ऑन स्क्रीन? हाउ टू मोल्ड योर ब्रेन कि यार अगर मैंने किया तो मैं घर जाके कैसे बताऊंगी या कैसे फेस करूंगी शीशे में अपने आप को? सो वो माइंडसेट क्या होता है? बताया तो कुछ करती नहीं। अच्छा एक बात बताती हूँ आपको, कभी कभी कुछ ऐसे रोज मुझे ऑफर हुए हैं जो मतलब मैंने जिनका लुक टेस्ट भी दिया है, सब कुछ हुआ है, कि एक वेब सीरीज बीच में आई थी, मदर एंड डॉटर की स्टोरी थी, जिसमें दोनों प्रोस्टिट्यूट्स हैं। तो मैं सबसे पहले अपनी मदर इन लॉ से पूछती हूँ कि मैं करूँ ये, क्या करूँ? मतलब अगर वो हरी झंडी दे देती है, और वो देती है हमेशा, कभी मुझे घर से किसी बात के लिए, उनको पता है वो बोली एक्टिंग है, इसमें क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली ड्रेसिंग थोड़ी लाउड होगी, सब कुछ होगा, डेफिनेटली।
हाँ, तो मैं अपने घर में इन लॉ से, मदर से, अपने भाई से, अपने हस्बैंड से पूछे बिना कभी कुछ नहीं करती। मैं उनको सब बता देती हूँ, ऐसा-ऐसा है, अब बताओ मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। That's मतलब so इट्स wonderful. हाँ, That's so wonderful. घर से That's छुपा so के मैंने आज wonderful. तक कुछ किया ही नहीं है। Wow, that's so beautiful यार। सीरियसली मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है आपसे। और ऐसा भी हो सकता है या ऐसे भी लोग करते हैं, क्योंकि जनरली लोग नेम फेम पाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। और स्पेशली हमारी जो टीवी इंडस्ट्री है या मूवी इंडस्ट्री, उसमें डेफिनेटली लोग बहुत ऑकवर्ड सिचुएशंस में भी फंस जाते हैं, लेकिन ऐसे भी सिचुएशंस को डील कर सकते हैं, ये एक महिला ही आपको सिखा सकती है, जो नहीं, हमारे अगर सामने ऑकवर्ड, मेरे हिसाब से ऑकवर्ड सिचुएशन में आप तभी फंसते हो जब आप चाहते हो। आप बिना चाहे नहीं फंस सकते। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। डिपेंड्स आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटीज क्या है? वेरी वेल सेड, वेरी वेल। देखिए आपसे बात करके सीख रहा हूँ, मैं भी समझदार हो रहा हूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। आगे चलते हैं। अब कोई एक ऐसा किरदार टीवी में जो आप कहती यार ये मैं करती तो इससे बेहतर कर पाती, या मेरे से बेहतर कोई नहीं कर पाता जो मैं कर चुकी हूँ। कोई ऐसा एक किरदार जो आपको बहुत पसंद हम्म, किरदार मेरे डिफरेंट रहे हैं हमेशा। जब से हो? रिस्टार्ट मैंने जब किया है, वो नेगेटिव भी किया है। कुमकुम में मेरा नेगेटिव रोल था। नेगेटिव, हाँ जी। हाँ, और उसके बाद मैंने अंग्रेजी में किया है, दैट वाज अ मुस्लिम रोल। लखनऊ की लेडी होती है। और इंग्लिश में तो श्रीदेवी का रोल था। सेम कहानी थी, अंग्रेजी में कहते हैं। जी। वो मेरा एक शो था, सिनर्जी एड लैब्स ने, सिद्धार्थ बसु ने बनाया था वो। ओके। उसमें मेरा वो सेम रोल था जो श्रीदेवी का उसमें था, कि मैं एक लेडी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मुझे इंग्लिश नहीं आते, इंग्लिश उसमें मैं सीखने जाती हूँ। तो वो सेम रोल, जिस दिन मैंने ये मुस्लिम रोल खत्म किया, मुझे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में रामायण मिल गई। रामायण के लिए जाने से पहले जब मैंने मंदोदरी प्ले किया था उसमें, तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था मंदोदरी का। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बुक लाके दी, आचार्य चतुर्सेन की लिखी हुई है, वयम रक्षामा। जी। वो मैं रात भर जब बड़ौदा गई, ट्रैवल कर रही थी, मैं पूरी रात को पढ़ती भी गई कि मंदोदरी एक्चुअली थी क्या। अगर वो मुझे परफॉर्म करना है नेक्स्ट डे, मेरा लुक टेस्ट भी होगा, तो वो लुक एक्चुअली उसका क्या हुआ करता था, वो प्रॉपर लुक आए और मैं उसको निभा पाऊँ। तो सब इतने डिफरेंट रोल्स थे और मुझे सभी बहुत ही प्यारे थे। अंग्रेजी में कहते हैं, वो जब इंग्लिश पढ़ने जाती हूँ उसमें मुझे बहुत मजा आया था। और मंदोदरी जब किया तो उसमें मेरी एकदम ही अलग पहचान में, जब रामायण जब आया तो आज भी लोग मुझे कई जगह मंदोदरी के नाम से ही जानते हैं। क्या बात है। फिर साथिया जब मैंने किया तो उसमें मेरा एक बिल्कुल ही डिफरेंट किरदार था, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत गरीब सी लेडी, जो कि बाद में इतनी नेगेटिव हो जाती है कि उसको सुसाइड करनी पड़ जाती है। मैं उसमें गोपी की मदर कर रही थी। तो वो रोल मेरा आज भी लोग याद करते हैं। मतलब अभी मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो आज भी लोग मुझे ओ मधु बेन के नाम से, ओ अच्छा, ओ अरे गोपी की मम्मी, ऐसे आज भी। तो यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगला सवाल मेरा यही होता आपसे कि वो किरदार आपके साथ ऐसे जुड़ जाते हैं कि आपकी ओरिजिनल आइडेंटिटी छुप जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जो पहली रामानंद सागर जी की रामायण आई थी, आज भी उनके जो राम लक्ष्मण और सीता जी का जिन्होंने किरदार निभाया था, आज भी लोग उनको उसी नाम से जानते हैं, उनके रियल नेम से बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम जानते हैं। राइट। तो ऐसे किरदार आपके ने परफॉर्म किए हैं फॉर श्योर। तो आज भी आपको लोग उन किरदारों से जानते हैं। ये एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसकी जो फीस है उससे भी ज्यादा बड़ी उसके लिए अहमियत जो रखते हैं, वो चीज यही है, क्यों रखते हैं। तो सॉरी। तो जब आप ऐसे किरदार परफॉर्म करने जाती हैं, तो जया अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर कैसे करती है? क्योंकि आप घर में सब कुछ बता तो देती हैं, लेकिन अंदर से जया तो जया है, लेकिन हाँ, तो उसके मैंने जैसे बाहर। आपको बताया, जब मैं मंदोदरी करने गई तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे बुक लाके दी, बोले पढ़ती हुई जाना रास्ते में। तो मैंने मंदोदरी के बारे में पढ़ा, उसका क्या कैरेक्टर था, वो किस तरह की लेडी थी, कैसे रहती थी, कैसे वो मतलब रावण के साथ उसका इक्वेशन थी, कैसे समझाती थी, वो बहुत ही समझदार टाइप की लेडी थी। तो वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने जब ये किया, साथिया किया, तो ये गुजराती कैरेक्टर था। तो मैंने उनको क्लियरली पहले बोला था कि मुझे गुजराती बोलनी नहीं आती है। तो बोले कि नहीं, हमें गुजराती बुलवानी भी नहीं है आपसे, आप हिंदी बोलो। और मतलब जब मेरी एंट्री हुई थी तो मैं ऐसे दिखाया था कि जैसे मैं अपने पास्ट में कहीं रह गई हूँ। मतलब जब मेरी बेटी मुझसे बिछड़ जाती है, क्योंकि ये बेटी गोपी तो शुरू से बड़ी दिखाई थी, मेरी एंट्री 1 साल के बाद हुई है साथिया में। तो मुझे ऐसे दिखाया गया था कि जब मेरे गांव में बाढ़ आ गई थी और गोपी जिंदा रह गई, और मतलब मुझे लगा कि वो मर गई, तो मेरी मेंटल वहीं रुक जाती। मैं हर लड़की को गोपी समझती हूँ। अच्छा। तो वो मेंटली डिस्टर्ब थी मैं उसमें जब मेरी एंट्री हुई, और मुझे 3 महीने में वापस नॉर्मल किया गया। तो वो रोल करने में मुझे भी बहुत मजा आया।
बिल्कुल ही डिफरेंट रोल था। और मतलब एक सीधी सादी लेडी और जो मेंटली डिस्टर्ब है, और हर बच्चे को अपनी गोपी समझती है। राइट। अब गोपी की भी बेटी हो चुकी है और मैं बार बार जाकर उसको पकड़ लेती हूँ। तो मतलब वो एक बिल्कुल डिफरेंट था। फिर उसमें वापस से सही होना, वही सिनेरियो क्रिएट किया गया मेरे घर में, फिर से बाढ़ लाएगी, कुछ जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि वही चीज वापस की जाए राइट, तो याददाश्त मेमोरीज वापस आ वापस आ जाती है। हाँ, जाएगी। तो वही वो तो। उस चंक में बहुत मजा आया, इसलिए वो मेरा कैरेक्टर जब बाद में जब मैंने देखा कि सास और बहू की, गोपी और गोपी की सास की इतनी इक्वेशन है, तो मैं उसे जलने लग गई थी। मुझे उस इक्वेशन से जेलसी होती थी उनके रिलेशनशिप से। तो मैंने धीरे 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 मैं शो में नेगेटिव होती चली गई। दिखती मैं बड़ी पॉजिटिव थी, बड़ी स्वीट और ऐसी माँ ऊपर से सबके सामने, पर पीछे से मैं हरकतें नेगेटिविटी की करती थी ताकि उन दोनों की जोड़ी टूट जाए। तो मैं ये वही आपसे पूछना चाह रहा था कि जया अपने आप को उस किरदार में ढालने के लिए अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करती है एक्चुअल में, क्योंकि घर में आके तो वापस वही बनना है, मम्मी बनना है, बीवी बनना है, बहू बनना है, उसी किरदार में आना है, वो तो परमानेंट है। बट बाहर जाके जो सेट पे आपको परफॉर्म करना, वो जो बैरिकेडिंग है, वो ब्लॉकिंग है, वो चेंज ओवर, वो कैसे तैयार करती है? क्योंकि एक महिला के दिमाग में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो साथिया का था, ये हमने चेंज ओवर ऐसे लिया था। मैं जब एकदम भोली भाली सी दिखती थी तो मैं चश्मा लगाती थी, और वो जैसे गई वो चश्मा उतरा और वो नेगेटिव हो जाती थी। आहा। तो वो चेंज ओवर के लिए ये लिया गया। तो जब मैंने पहली बार जब सर को सजेस्ट किया, मैंने कहा सर मैं ऐसे ले लूं कि जब वो निकली, जब मेरा पहला शेड आया, जब मैं बड़ी प्यारी सी हूँ और जब वो निकल गया तो मैं जैसे एक्सप्रेशन चेंज होता है तो मैं चश्मा उतार के अपना वो फिर पूरा नेगेटिव में आ जाती थी। तो वो इतना हिट हो गया कि सर बोले एक दिन मैं रजनीकांत की तरह चश्मा घुमाऊंगा तुम्हारा। और जब मुझे जब जैसे मैंने जब सुसाइड कर लिया लास्ट में 5-1 साल बाद साथिया में, तो मेरी जितनी अच्छी ग्रैंड मेरी एंट्री थी साथिया में, उतनी ही ग्रैंड मुझे एग्जिट भी दी गई। बकायदा पूरी ना चिता विता सजी और पूरा मीडिया आ गया था कि मधु बहन बेटी है यहाँ पे और ऐसा। और मधु बहन वो भी अपने फेवरेट चश्मे के साथ, क्योंकि मेरे चश्मे से बहुत रिलेशन था। ये पूरी एक न्यूज बनी थी, हेडिंग थी, मधु बहन लेटी थी अपने चश्मे के साथ। वाह। तो अच्छा एक चीज पूछूं, ये फीलिंग कैसी होती है, मतलब जो लोग आपको स्क्रीन पे देखते हैं इस तरह के किरदार या इस तरह के मोमेंट्स शूट करने के लिए, कि आप प्ले तो आप वो किरदार कर रही हैं, लेकिन असलियत में तो आप है जो उस रोल को प्ले कर रही है, और आपको जब बताया गया, जैसे बताया कि मेरी चिता बनी हुई थी, मैं चश्मे, तो वो टेक लेते हो क्या मजा आता है, मतलब क्या फील आती है उस टाइम? उसमें क्या हुआ कि अच्छा मुझे तो चिता पे लिटा दिया है ना, और पूरी मीडिया तो लगी है और इतनी तेज धूप थी, जैसे कट होता सारे भाग जाते हैं छाया में, और मैं वही चिता पे लेटी हूँ धूप में। और फिर मेरे कुछ है क्लिपिंग्स है मेरे पास, जो चिता पे लेटे लेटे मैं नींबू पानी पी रही हूँ। तो ये भी तो अपनी चिता का जो मजा है ना, वो एक एक्टर ही ले सकता है। मुझे मारा है, लकड़ियां ऊपर है और मुझे ऊपर से नींबू पानी पिलाया जा रहा है, गर्मी बहुत थी। एक करने में 5-6 घंटे तो लग ही जाते हैं जी। तो अच्छा मेरे क्वार्टर्स तो जो थे ना, जब चिता में जब पूरा परिवार आया हुआ था, वो जैसे ही कट हो वो सब छाया में भाग जाए और मैं धूप में। तो फिर मैंने छाता मंगाया गया मेरे लिए, नींबू पानी, और बैठे बैठे नींबू पानी पीती थी। तो ये पूरी उन्होंने एक न्यूज बना के चलाई थी आज तक पे पूरी। वाह, दैट्स ग्रेट। मतलब ये एक बहुत प्लस और माइनस पॉइंट भी है कि मतलब आप चिता पे लेटे लेकिन आपको ट्रीटमेंट भी आएगी। तो मतलब मेरे साथ उस टाइम सबने सेल्फीज खिंचवाई। सेल्फी टाइम ये भी था, अब आया सेल्फी टाइम। हर एक्टर आके मेरी चिता के साथ मेरे साथ सेल्फी खिंचवा रहा है, मुझे मालाएं पड़ी है, पूरी लकड़ियां पड़ी है ऊपर, और सेल्फी टाइम चल रहा है। वाह, व्हाट अ मोमेंट दैट वुड हैव बीन, मतलब मेमोरीज फॉर लाइफ टाइम, फॉर लाइफ टाइम। और आप जैसी अदाकारा स्ट्रॉन्ग हेडेड लेडी इसे निभा सकती है इतनी खूबसूरती से, व्हाट आई बिलीव, और आप ही कर सकती हैं और आपने किया भी है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, हमारी इंडस्ट्री में, मींस टीवी इंडस्ट्री में जो है, लेडीज का दर्जा आप किस तरह से देखते हैं कि उन्हें उतनी रिस्पेक्ट, उतनी वैल्यू, उतना पे आउट मिलता है जितना मेल एक्टर्स को मिलता है? हाँ बिल्कुल मिलता है। आप अपना दर्जा, अपनी स्टैंडर्ड, अपना पे आउट खुद बनाते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद अर्न करते हो। दैट्स ग्रेट। तो कई बार होता है ना कि यार ठीक है, न्यू कमर है या लड़की है, देख लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेगी। न्यू कमर है तो उसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन मैंने ऐसा कभी फेस नहीं किया कि अरे लड़की है इसको देख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा किसी किसी के साथ हुआ होगा, पर मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ, मैंने ना कभी होते हुए देखा एक बार। ओके, चलिए, दैट्स ग्रेट। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा दूसरी एंड पे कि आप काम अच्छा कर रही हैं, लवर्स तो है तो हेटर्स भी होंगे,
क्योंकि दलजीत तेरा नहीं मैं तेरा मैं लवर, और लवर के साथ हेटर्स भी साथ में आते, तो कभी अपने बारे में कुछ ऐसी बातें अफवाहें सुनिए जो कभी हो ही नहीं सकती हैं कि नहीं, जया अफवाह लेट आती है, ये नखरे ज्यादा है? नहीं, वो मेरे बारे में बोल ही नहीं सकते, क्योंकि मेरा एक तो बिल्कुल हर जगह पता है कि मैं आती बिल्कुल टाइम पे हूँ, हम्म। और मैं आती भी विद मेकअप हूँ। अच्छा। अपनी गाड़ी में पूरा सिस्टम रखा हुआ है, जो मेरा घर थोड़ा बर्ड में रहती हूँ मैं, तो कहीं भी जाने के लिए 1 घंटा लग जाता है, तो मेरा पूरा सिस्टम है, मेरा पूरा मिरर लगा हुआ है गाड़ी में, पूरा ऑर्गेनाइजर है, मैं मेकअप रास्ते में कर देती हूँ। तो दे ठीक ऑल है। नो कि आई विल कम इन टाइम, ये पक्का है, मैं कभी लेट नहीं होती। हम्म। 10 मिनट भी कभी कहीं फंसी तो मैं फोन कर देती हूँ, मैं 10 मिनट लेट हूँ। ये आज बॉम्बे में रह के कोई लेट नहीं माना जाता, पर डेफिनेटली। 9 तो मैं 9 बजे में 5 मिनट पे पहुंच ही जाती हूँ। ठीक है। और ये जरूर है, कैरेक्टर को लेकर लोगों ने जरूर हेट किया मुझे, मधुबन जब मैं बनी थी, तो वी हेट मधुबन, इसको बाहर निकालो, जब मैं बहुत नेगेटिव हो गई थी। तो दैट दैट एड्स टू माय कैरेक्टर कि मैंने इतना ऐसे प्ले किया कि लोग मुझे मतलब हेट करने लग गए। पर मुझे नहीं लगता पर्सनली मेरे साथ किसी का कोई ऐसा इंसिडेंस हुआ हो, या मेरे बारे में किसी ने पीछे से बोला हो, वो मेरे मुझ तक नहीं पहुंचा। चलिए, दैट्स रियली ग्रेट, सो ब्लेस्ड यू आर, आई मस्ट से दैट यू आर सो ब्लेस्ड। सो अब अगला सवाल जो है वो थोड़ा सा और ज्यादा विटी ऑनर है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने जानो अपने सेट पे, आप तो मेकअप वेकअप तैयार करके गाड़ी से उतरी और किसी और सेट पे पहुंच गई हो, या कभी डायलॉग डायलॉग भूल गई हो, बोलते बोलते किसी और भाषा में बोल दिया, किसी और नहीं, ये डायलॉग जरूर मेरे साथ हुआ है। मैं हाँ। सुबह संतोषी माँ शूट कर रही थी, दोपहर में मुझे ये करना था मारवाड़ी वाला, तो तब नया नया मारवाड़ी शुरू हुआ था। तो मैंने गलती से जब बादल आ गए और एक डायलॉग जो था वो गलती से मारवाड़ी उसमें बोल दिया, तो फिर मैंने कहा सॉरी सॉरी सर, मतलब वापस उसमें आना पड़ा। तो ये मेरे साथ जरूर हुआ एक आध बार। हो जाता है क्योंकि आप इतना हार्ड वर्क कर रही हैं, 2-2 शिफ्ट्स में काम कर रही हैं, और सारा कुछ चेंज हो जाता है, मतलब वो पर्सनालिटी टोटली चेंज हो जाती है, क्योंकि लर्न डी लर्न देन लर्न अनदर थिंग बहुत डिफिकल्ट हो जाता है एक इंसान के लिए परफॉर्म करना। इट टेक्स लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस टू बी दैट फ्लुएंट चेंज ओवर करने के लिए। अब मैं आपसे पूछूंगा कुछ ऐसी मूवीज जो जिन्होंने आपको बहुत इंस्पायर करा, आपको लाइफ में, फीमेल ओरिएंटेड मूवीज ने, जो आप कहते हैं ये किरदार काश मेरे को मिले तो मैं परफॉर्म भी करूं। हाँ, अभी मैंने रिसेंटली देखी अपना ये गंगूबाई, जी। इसमें जो सीमा जी ने रोल किया है, उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया। और उन्हीं की फिल्म थी एक और, मुझे फिल्म का नाम नहीं याद आ रहा, उसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर किया था उन्होंने, पंजाबी कैरेक्टर था, दिल्ली बेस्ड। मतलब वो मुझे अभी रिसेंट उसमें मुझे बड़ा इंस्पायर करती है कि वो हर रोल को इतने अच्छे से निभाती है। मुझे लगता है उनको अपना ड्यू नहीं मिला अभी तक, और मे बी नाउ इट्स द टाइम, हर आदमी का टाइम आता है, उनका टाइम आया है, उनको भी शायद मिल भी जाएगा। मतलब गंगूबाई में बहुत मेजर रोल था उनका, पर बहुत लंबा रोल नहीं था, पर जो भी उन्होंने किया है, मैं घर में यही डिस्कस कर रही थी, मैंने कहा मैं ये फिल्म दोबारा देखूंगी अपने घर पे बैठ के सीखने के लिए, क्योंकि मैंने कोई एक्टिंग सीखी नहीं है, ना मैंने एनएसडी से कुछ किया है, ना कहीं और से कुछ सीखा है। जो भी कुछ सीखा है या तो थिएटर के थ्रू सीखा है, या मैंने कर करके सीखा है। तो वो जो कैरेक्टर था कभी मेरे पास आया तो मैं प्रिपेयर्ड रहना चाहती हूँ कि अगर मैं उनके जैसे परफॉर्म कर पाऊँ। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। देखिए, आपने अपने गोल्स ने इतने हाई सेट कर रखे हैं कि डेफिनेटली आप उनको मीट करने जाती हैं तो अपने आप अच्छी चीजें निकल के आती हैं, चाहे नेगेटिव कैरेक्टर हो चाहे पॉजिटिव हो। दैट रियली शोज हाउ वेल बैलेंस्ड यू आर इन योर थॉट प्रोसेस, कि ये आना चाहिए यार, दिस इज माय स्टेटमेंट और बिगर स्टैंडर्ड, कि यहाँ जया को मैं यहाँ देखती हूँ। दैट्स रियली मार्वलस, वाओ, दैट्स सो ग्रेट। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने कभी डायरेक्टर को, यार कुछ प्रॉब्लम होगी, टेक्निकल इशू हो गए, शिफ्ट का टाइम खत्म हो गया कि 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, तो कभी उस चीज को आगे पीछे लेके एडजस्ट करा, या कभी होता है कि नहीं मैं नहीं करूंगा? नहीं, 12 एक्चुअली हमारे यहाँ 12 घंटे की शिफ्ट होती है टीवी में। आजकल हर जगह 12 घंटे ही होने लगे हैं। कभी कभी हो जाता है कि एक्सटेंड कर देते हैं वो लोग। तो मेरा उनका पॉइंट यही है कि कभी आपको लगे कि हमें एक्सटेंड कराएं, मुझे सुबह ही बता दो कि हम आज शिफ्ट एक्सटेंड करेंगे। नॉर्मली यही होता है। अब क्योंकि क्या है, यंग एज में सब चल जाता है, एज यू ग्रो ओल्डर खाने के टाइमिंग्स जल्दी हो जाते हैं। जैसे मेरा गॉलब्लैडर का ऑपरेशन हुआ है, गॉलब्लैडर रिमूव किया था मेरा, 2-3 साल हो गए रिमूव किए, मेरी बॉडी एडजस्ट ही नहीं कर पाई, तो मुझे डिनर जल्दी लगता है। उसके लिए मैंने अपनी तैयारी की हुई है, मैं आई कीप माय राइस कुकर, मैं अपनी खिचड़ी बना लेती हूँ अपने रूम में, पुलाव बना लेती हूँ, खिचड़ी रूम में बन जाती है। बट ये है कि मुझे पहले से पता हो, मुझे बता दिया जाए कि आज हम एक्सटेंड करेंगे।
That's great. नहीं, that's professional as well कि आपकी कोई दूसरी शिफ्ट हो, आपने कहीं जाना हो तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम मैनेजमेंट कर सकें, दूसरों को वेट ना कर रहे. नहीं और That's so सब करते हैं, उनको ऑलरेडी जब पता होता है कि इनके दो शिफ्ट्स लगी हुई हैं आज, तो वो सब मैनेज करते हैं, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा. राइट. ओके, तो अब मैं क्विकीज आपसे कुछ 5 पूछूंगा, 5 क्विकीज, फटाफट से जवाब देना. आपका सबसे फेवरेट स्टूडियो टू शूट इन मुंबई? शूट इन मुंबई शूट करने के लिए सबसे फेवरेट. ये तेरा यार हूं मैं. ओके. सेकेंडली, योर मोस्ट हेटेड कैरेक्टर? मोस्ट हेटेड कैरेक्टर तो मेरा कुछ भी नहीं रहा. कुछ नहीं सब रहा. मैंने कैरेक्टर ही नहीं किया. नहीं होता नहीं यार, ये हाँ तो कर दिए मैंने इन्फ्लुएंस में आके, बट ये करना पड़ेगा. ओ शिट, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू, जय नाउ डू इट. आपने करा होगा, लेकिन मतलब एक बोलते नहीं कि क्यों पकड़ लिया, कैसे कैसे कह सकती हूँ मैं इसको? हाँ. नहीं मुझे ऐसा कोई मिला ही नहीं, मतलब दैट्स जस्ट बाय चांस. मुझे ऐसा कोई रोल ही नहीं मिला कि जिसको मैंने किया और यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था. ओके. यू लव ईटिंग मोर ऑफ स्ट्रीट फूड और होम कुक्ड फूड? स्ट्रीट फूड. स्ट्रीट फूड पक्का, पानी पूरी स्पेशली. यस. मैं आज जब घर से निकली थी तो मैंने ये कहा था कि मैं घर यहाँ पे मुझे 8 बजे अपने घर पहुंचना था बेसिकली. और जब मैं निकली हूँ तो इतना लेट हो गई, इतना जाम था आज. मैं घर से निकली थी ये सोच के कि घर आने से पहले पानी पूरी खा के जाऊंगी, वरना पानी पूरी मिली ना, मैं घर पहुंच पाई. सीधे अपने बीच में मेरे भाई का घर बीच में पड़ता है, उनके आके मैं आपसे ये बातचीत हो रही है. ओके, कोई बात नहीं. आप जाते हो कालीन, तो जब भी आप दिल्ली आए या मुंबई आए, इट्स ड्यू ऑन मी फॉर श्योर. आपकी सेवा में हाजिर रहेंगी पानी पूरी. राइट. अगला सवाल, इंडियन आउटफिट्स और वेस्टर्न आउटफिट्स? इंडो वेस्टर्न. इंडो वेस्टर्न मिक्स अप बैलेंस. क्या मैम डिप्लोमेट आंसर मारेला, एकदम शाने नहीं बन नहीं के. मैं आई एम मोर इनटू इंडियन बिकॉज़ मेरा फेस बड़ा इंडियन है, पर आई एम मोर कंफर्टेबल इन इंडो वेस्टर्न. Okay. If given a choice, what will you choose now in your life? Acting or singing? सिंगिंग. Singing. Wow, that's so good. और आपने sing. ये यू नो व्हाट, जब हम बच्चे होते हैं ना, पेरेंट्स जो हमेशा कहते हैं हमेशा उसका उल्टा करना चाहते हैं. Yes, that's true. मेरे फादर बड़ा चाहते थे कि मैं सिंगिंग में आऊं और मैं गाना गाऊं, और मैंने उनका कहा बिल्कुल नहीं माना. हालांकि वो मैं जब एक्टिंग मैंने एंटर किया तो तब भी बहुत खुश थे वो, क्योंकि उनके अपने अंदर भी एक अच्छा सा आर्टिस्ट था, मेरी मदर के अंदर भी है. तो आर्ट में निकली मैं ऑब्वियसली एक्टिंग में, पर एक उनका जो ड्रीम था कि मैं गाना गाऊं, और उन्होंने बचपन से मुझे गाना सिखाया है. मेरे मतलब गुरुजी भी घर पे लगे हुए थे. तो अब ऐसा लगता है कि मुझे वो भी जिंदा रखना चाहिए था कि गाना भी गाना चाहिए. और आज मैं एक्चुअली बोलूं तो मैं अपने प्रोड्यूसर से कभी कभी रिक्वेस्ट करती हूँ कि कोई सिंगिंग रोल हो तो मुझे प्लीज जरूर कास्ट करना, जिस रोल में मुझे गाना गाना हो तो मैं अपनी आवाज में गाऊंगी. मैम देखिए, हम कास्ट तो नहीं कर सकते, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज कुछ हमारे लिए, माइकोलॉजी के लिए और हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनके लिए कुछ हो जाए आपसे, तो मजा आ जाएगा. दो गाने जो आपका बहुत ही करीबी गाना, जो कभी भी मतलब बोलो ना कि जया कुछ ना हो तो आंख बंद करे और वो गाना स्टार्ट हो जाए अपने से कि ये जया का गाना है. और एक गाना जो आपको बहुत मोटिवेट करता हो, कुछ ऐसा. गाने तो देखो, हम जब भी गाने की बात करें तो पुराने गाने हमेशा याद आते हैं, क्योंकि हम पुराने गाने ही गाया करते थे. तो आर डी बर्मन साहब के कुछ गाने जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. एक गाना मैं आपको सुना देती हूँ उसमें से. जी. आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे, बोलो देखा है कभी तुमने मुझे उड़ते हुए. आज कल पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ते मेरे. ब्यूटीफुल मैम, ब्यूटीफुल. यू आर अ ट्रेन्ड सिंगर, आई मस्ट से. आपको सिंगिंग करनी चाहिए, शुड गिव इट अ ट्राई. और आप तो घर में भी गाती रहती हैं, जैसे मैंने स्टूडियो आपके पास. तो एक गाना जो मोटिवेट करता हो कि कभी होता ना यार आज दिन थोड़ा सा टायरिंग हो गया, या आज ये चीज सेट पे अच्छी नहीं हुई, मतलब उस एक्टर के साथ. या मेरा टाइम पास, अगर मैं सेट पे इरिटेट नहीं होना, लेट हो गया, 2 सीन्स में बहुत गैप हो गया, बोर हो रहे हैं, तो मैं उस टाइम पे गाना गा लेती हूँ. तो आपका मूड वैसे ही फ्रेश रहता है. Okay. मेरा ये मतलब मूड फ्रेश रखने का मंत्र ये है कि गाते रहो तो आप मस्त रहते हो. तो कौन सा गाना गाए, कौन सा, अगर आप
कोई भी जाम गाना। में फंसी हुई है, जैसे अब जाम में फंसी थी उस सिचुएशन में कौन सा गाना गाएंगे? जैसे जाम में फंसी थी, पहुंच नहीं यार, इंटरव्यू है, पानी पूरी खानी है, क्या खाऊंगी, क्या क्या गाऊंगी मैं? तो क्या गाऊं उसमें? कोई भी गाना जो अपना पसंद का गाना कहीं आ जाए, रेडियो में बज जाए तो रिफ्रेशिंग हो जाता है, सब भूल जाते हैं। म्यूजिक ऐसी चीज है। ओके, तो दैट्स सो गाने तो बहुत सारे हैं, पर ऐसे कोई मतलब अच्छा गाना अपने टाइम का, अपने मूड का आपको मोटिवेट कर जाता है। सो जहां तक मैं समझ पाया आपको मोहम्मद रफी साहब तो आपने बताई, लेकिन गुलजार साहब के लिखे गाने बहुत पसंद है। मैंने शायद कहीं पढ़ा भी था कि गुलजार साहब की जो बातें हैं उसका कहने क्या, कोई गुलजार साहब का गाना जो आपका पसंदीदा हो, जो आप गाना चाहें हमारे लिए प्लीज। बदरी उठा के चंदा, चुपके से झांके चंदा, बदरी हटा के चंदा, चुपके से झांके चंदा, तो हेरा हो लागे मेरी मुस्काए जी जलाए के, हो मोरा गोरा रंग ले ले, मोहे श्याम रंग दे दे, छुप जाऊंगी रात ही में, मोहे पी का संग दे दे। Beautiful, yeah, beautiful, ma'am. I must say you are such a versatile person. सब कुछ है आपके पास, सब कुछ आप करती हैं और इतनी बखूबी निभाती हैं। इस चीज से भगवान ने बहुत कम लोगों को नवाजा और खास तौर से महिलाओं में आपको उस चीज से बहुत अच्छे से नवाजा है। हर एक चीज आपके पास। आई एम रियली ऑनर्ड टू स्पीक टू यू टुडे। और एक गाना जो मैंने आपसे सुना था, मेरे को आज भी याद है, मैं जब आपसे मुंबई में पहली बार मिला था तो आप किसी का वेट कर दी, शायद कुछ हमारी मीटिंग हुई थी। मैं आपसे मतलब आना मेरे को थोड़ी देर पहले था, मतलब बाद आना था, बट मैं पहले आ गया था एज की टाइम। तो आप एक गाना गुनगुना रही थी, वो था मेरा कुछ सामान। मुझे नहीं पता आप क्यों गुनगुना रही थी, और वो अगर एक बार मेरी रिक्वेस्ट है, गुलजार साहब का गाना है और वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। जी अगर 2 लाइनें हो जाए प्लीज, इफ यू डोंट माइंड। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, का सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं, और मेरे एक खत में लिपटी रात पड़ी है, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो, वो रात बुझा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। Beautiful, mesmerizing, I must say. Is this the word to describe your singing? I'm such a wonderful singer, यार, और बहुत अच्छा लगा. Really feeling, privileged to talk to you. Thank you so much. आपने इतने committedly time निकाला हमारे इस situation में. नहीं, I'm so sorry, मैं लेट होने के लिए मतलब. नहीं मैम, that's very much okay. But in fact, I must tell you, मैं भी थोड़ा लेट था, कुछ emergency थी जो unavoidable थी. Same here, मतलब हमारे साथ भी, मैं क्योंकि आज सुबह ही लौट पाई हूँ, मैं मेरी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, जी मुझे 4th को वापस आना था और मैं आज भी सुबह ही लौटी हूँ. कोई बात नहीं मैम, बट नो मैटर, वही आपकी बात दोहराना चाहूंगा, इट वाज ऑल डेस्टाइन्ड टू हैपन एट दैट वेरी मच मोमेंट। वो तभी होना तो इससे पहले नहीं हो सकता था, और ये होता भी नहीं। बट बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मेनी मच वंस अगेन फ्रॉम द कंप्लीट टीम ऑफ माइकोलॉजी एंड ऑल व्यूअर्स। Stay happy, stay blessed, and keep rising, keep singing. We are your fans and will be following you for sure. God bless you, ma'am. Take care. Thank you so much. Take care. Bye. Thank you, man. Bye, ma'am.